ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے عبداللہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ کی شکل دیکھنا چاہو گے؟ تو میں نے بڑے شوق سے کہا کہ بالکل دیکھنا چاہوں گا۔ تو عبداللہ کہتا ہے پی ڈی ایم کے کسی سیاستدان کی شکل دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ یہ جھوٹ کی شکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمود نیازی ہوں اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پاکستانی انٹلیکچول اور ایک بنگلہ دیشی صحافی کے درمیان ایک مکالمہ آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور پورا سننا ہے۔ یعنی جن حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں یا جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں وہ کرب آپ کو نظر آئے گا، اور اس صحافی نے اصل میں تشخیص کی ہے کہ کیوں بنگلہ دیش جو ہے نا بنا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا، اور جو آج کل کے حالات ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ایک پاکستانی اور ایک بنگلہ دیشی صحافی کے درمیان مکالمہ۔ مکالمے کا عنوان ہے علیحدگی کی وجہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا کہنا تھا یہ جدائی ہمارے لیے اچھی تھی، ہم نے الگ ہو کر ہر شعبے میں ترقی کی اور ہم بڑی تیزی سے پسماندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر ترقی پذیر قوموں میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ ہمارے سامنے ڈیم اسکوائر کی رونق تھی۔ ایمسٹرڈیم سیاحوں سے لبالب بھرا تھا۔ لوگ دھوپ سینک رہے تھے، تصویریں کھینچ رہے تھے اور ٹرام کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جبکہ ہم دونوں ریستوران کے شیشے سے ایمسٹرڈیم کینال اور کینال میں ڈولتی بھاگتی موٹر بوٹس دیکھ رہے تھے۔ وہ بنگلہ دیش کا صحافی تھا، اس کا نام مظہر الاسلام تھا، اور ہم دونوں چند دن کے لیے ایمسٹرڈیم میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں پاکستان سے سیر کے لیے گیا تھا اور وہ پن چکیوں پر تحقیق کے لیے ہالینڈ پہنچا تھا۔ میں نے ہالینڈ کے محکمہ سیاحت سے پیئنگ گیسٹ کے لیے درخواست کی اور گیسٹ ریلیشننگ افسر نے مجھے مظہر الاسلام کا ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ مظہر ڈیم اسکوائر کے قریب ایک اسٹوڈیو فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ فلیٹ کا کرایہ زیادہ تھا، لہٰذا اسے کسی ایسے مسلمان سیاح کی تلاش تھی جو اس کے ساتھ فلیٹ اور کچن شیئر کر سکے۔ یوں میں اس کے پاس پہنچ گیا اور ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ سارا دن پنچکیوں کے جنگل میں گھومتا رہتا تھا اور میں کبھی ڈیلف چلا جاتا تھا، کبھی ہیگ، کبھی اوترش اور کبھی ڈیم اسکوائر کے سینکڑوں ہزاروں سیاحوں میں گم ہو جاتا تھا۔ وہ شام کو واپس آتا تو ہم چرسیوں کے قہوہ خانوں میں جھانکنا شروع کر دیتے۔ وہ بھی میری طرح سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اسے چرسی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب کسی حسینہ کو چرس کے نشے میں دھت دیکھتا تھا تو اس پر ایک عجیب سرشاری سی طاری ہو جاتی تھی اور وہ گردن ہلا کر کہتا تھا، یہ ہوئی نا بات، شالی اب آسمان پر گھوم رہی ہے۔ یہ 14 اگست کی بات تھی۔ میں نے اسے جلدی بلایا اور ہم دونوں ریستوران کی تیسری منزل سے ایمسٹرڈیم میں جھانکنے لگے۔ میں نے اس سے اچانک پوچھا، یار مظہر الاسلام، اگر بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا تو آج تم بھی میرے ساتھ آزادی منا رہے ہوتے، آج ہم دونوں بہت خوش ہوتے۔ اس نے گرم کافی کا لمبا سا گھونٹ بھرا اور مسکرا کر بولا، لیکن شاید ہم دونوں بیک وقت خوش نہ ہوتے۔ اب پلیز غور کرنا ہے، ہم بنگالی آپ لوگوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ ہماری ثقافت، ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت میں بڑا فرق تھا۔ ہم دونوں نے کبھی نہ کبھی الگ ہونا ہی تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں روایات اور ثقافت کا بہت فرق تھا۔ آپ پر فیوڈل لارڈز حاوی تھے۔ آپ کے کلچر میں ایک وڈیرا، سردار یا چودھری ہوتا ہے اور باقی سب کمی، کمین اور ہاری۔ آپ کا وڈیرا تمام ہاریوں اور کمیوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کلچر جب دیہات سے نکل کر شہروں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بیوروکریٹ، سیاستدان اور جرنیل وڈیرے بن جاتے ہیں اور عوام ہاری،
कमीन और कमी, आप लोग इस कल्चर में परवान चढ़े थे। आप लोग दो तबकों में भी तकसीम थे, जालिम या मजलूम। लाइन पे गौर करना है, आपके मजलूम पूरी जिंदगी जालिम क्लास में शामिल होने की कोशिश करते हैं, जबकि जालिम अपनी पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि हम लोग मछेरा क्लास के लोग हैं, मछेरे आजाद मंश होते हैं। ये जिंदगी भर सरदार बनते हैं और ना ही किसी की सरदारी कबूल करते हैं। ये आजाद रहते हैं और दूसरों को आजाद रखते हैं। ये लोग टीम वर्क के आदी होते हैं। उनमें से हर शख्स अपना रोल मुतय्यन कर लेता है और इसके बाद चुपचाप काम करता रहता है। हमारे यहां अगर कोई शख्स एक बार चप्पू थाम ले तो वो जिंदगी भर चप्पू नीचे नहीं रखता। हमारे मुआशरे में कोई किसी का बॉस नहीं होता, सब मिलकर कोशिश करते हैं और आखिर में नताइज आपस में बांट लेते हैं। हमारे बरअक्स आप लोगों को हर वक्त एक लीडर, एक जागीरदार, एक जर्नैल और एक डिक्टेटर की जरूरत होती है। हालात देख लें, आप लोग डिक्टेटर के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, जबकि हम लोग डिक्टेटर के साथ तरक्की नहीं कर सकते। आप और हमारे दरमियान ये बहुत बड़ा फर्क था। वो बोलता रहा और मैं सुनता रहा। उसने बताया, आप लोग दो बातों से हमारी आजाद मंश फितरत का अंदाजा लगा लीजिए। हिंदुस्तान की तारीख में कोई फाते, कोई ताले आजमा हमें ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रख सका। जो भी जर्नैल बंगाल पहुंचा वो बिल आखिर वहां से पसपा हुआ। मुगल बंगाल आए लेकिन उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग बंगाली रेजिमेंट ने शुरू की। वायसराय की गाड़ी पर पहला हमला बंगालियों ने किया। हिंदुस्तान में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़ी सियासी जमातें हैं। इन दोनों सियासी जमातों ने बंगाल में जन्म लिया और अंग्रेजों ने बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया, लेकिन बंगालियों ने अंग्रेजों को यह फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया वगैरह। हम हकीकतन आजाद लोग हैं। हम किसी जर्नैल, किसी जागीरदार और किसी वडेरे को बर्दाश्त नहीं करते। वो रुका, उसने सांस लिया और इसके बाद बोला, आप जुल्म करने और जुल्म सहने के आदी हैं, लेकिन हम लोग जुल्म करते हैं और ना ही जुल्म सहते हैं। चुनाचे हम लोग आपसे अलग हो गए। हमें इस जुदाई का फायदा हुआ। हमने पिछले 35 बरसों में हर शोबे में तरक्की की। हमने फौज और सियासत को अलग अलग कर दिया। हमारे सियासतदानों के दरमियान ये इत्तेफाक हो चुका है, बांग्लादेश में हालात जैसे भी हों वो फौज को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। हमने फौज का साइज छोटा कर दिया। इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में बांग्लादेश का फौजी बजट सबसे कम है। हमारी करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले में मजबूत है। हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क पाकिस्तान से बड़ा और मजबूत है। हमारे देहात में सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल और टेलीफोन मौजूद हैं। हम बड़ी तेजी से दरामदी मुल्क से बरामदी मुल्क बन रहे हैं। हम हर साल पाकिस्तान के मुकाबले में 40 गुना ज्यादा गारमेंट्स बरामद करते हैं। हमने ग्रामीण बैंक बनाया। ये बैंक अब तक 2 करोड़ बंगालियों का मुकद्दर बदल चुका है। ये दुनिया का पहला बैंक है जो किसी पसमानदा मुल्क से तरक्की याफ्ता ममालिक में एक्सपोर्ट हुआ। दुनिया के 68 ममालिक ने अपने शहरों में ग्रामीण बैंक के मॉडल को कॉपी किया। निमकोल ORS बांग्लादेश की इजाद है। हमारी ये इजाद इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। हमारी एक NGO ब्रेक ने बांग्लादेश की आखिरी सरहद तक स्कूल खोल दिए। हम लोग तालीम में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तमाम देहात में डॉक्टर्स और डिस्पेंसरियां मौजूद हैं। हमारी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और स्कूल 7 साल में 300 दिन खुलते हैं और बांग्लादेश का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जिनकी तरफ मल्टीनेशनल कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। आज हालत यह है, आपका नादरा गाड़ियों का ट्रैकिंग सिस्टम बनाता है, लेकिन ये ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में नस्ब होता है। बांग्लादेश दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं, जिसमें दहशतगर्दी नहीं हो रही और जिसमें खुदकश हमला आवर
पैदा नहीं हो रहे, हमारे बाजार भी आबाद हैं और तालीमी इदारे भी, जबकि आप लोग 2005 2006 में भी इन्हीं मसाइल का शिकार हैं जिनमें आप 1947 में मुब्तला थे। आपसे जुदाई का दुख हमें भी हुआ था। आज भी बांग्लादेश के ऐसे हजारों लाखों लोगों की घड़ियां पाकिस्तानी वक्त बताती हैं, लेकिन अगर उन लोगों को भी पाकिस्तान में शामिल होने का मौका दिया जाए तो शायद ये लोग बांग्लादेश छोड़ना पसंद न करें, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के फ्यूडल लॉर्ड्स और डिक्टेटरों से नहीं। वो रुका और लंबा सांस भरकर बोला, हम लोगों ने 1971 में फैसला कर लिया था कि हम डिक्टेटरों के साथ खुश नहीं रह सकते। हमने जब 1971 में आपको छोड़ा था तो उस वक्त पाकिस्तान में एक बावर्दी जर्नैल की हुकूमत थी। आज 35 वर्ष बाद भी आपके मुल्क में यूनिफॉर्म हुकूमत कर रही है। मैं आज यहाँ एम्स्टर्डम में बैठकर दावा करता हूँ बांग्लादेश में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, लेकिन क्या तुम दावा कर सकते हो? मैं खामोश रहा। वो बोला, तुम्हारी ये चुप हमारी अलहदगी की वजह थी। हम बोल पड़ते थे लेकिन तुम लोग खामोश रहते थे और खामोश रहते हो। हम इस वक्त भी तुम लोगों से आगे थे और हम लोग आज भी तुमसे आगे हैं। एक एक लफ्ज सोने से लिखने के काबिल है। क्या आजकल वही हालात नहीं है? मैं 2 टके का, बल्कि टका मजबूत है, रुपया 2 रुपए का यूट्यूबर हूं और रोजाना मेरे जो खैर खा हैं, हम दर्द हैं, मेरे जो मोहतरम व्यूअर्स हैं, वो मुझे खबरदार करते रहते हैं कि बोलना छोड़ दो, बोलो मत, ख्याल करना, ये वो। क्यों? वाई? मैं क्या करता हूं? कुब्बा खाने तो खुले हुए हैं, जुए खाने तो खुले हैं, गोश्त का कारोबार तो सरेआम हो रहा है, खुसरे हर जगह पे फिर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं जो मैं चुप कर जाऊं? तो बोलो, खुदा के लिए बोलो, बोलना सीखो। और जो नहीं बोलते तो जो बोल रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करो ताकि वो और बुलंद आवाज से बोलें। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी यूट्यूब फैमिली में इजाफा करें और अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट्स में आपने लाजमी लिखना है कि ये आपको 2 दोस्तों का मुकालमा कैसे लगा, पसंद आया, या इसमें कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। आपने लाजमी लिखना है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।